Good evening and welcome everyone to this live session on Indian economy in which we are going to see GAR rules, General Anti-Avoidance Rules as we call them. GAR rules were in news during the time of Pranab Mukherjee. General Anti-Avoidance Rules as we call them. This is to avoid the people avoiding taxes. Okay, some corrupt companies or some companies which are trying to avoid tax, they are checked through these anti-avoidance rules. Okay, some people in this class we are going to cover the terminology around tax evasion, tax avoidance, then tax exemptions. All these things we are going to cover. We are also going to see as to how the money laundering happens. Money laundering, right? So general anti-avoidance rules plus money launder. Laundering of money basically means that money's color is being changed from black to white. What is the modus operandi of these people? Money laundering basically a practice of पैसे को धोने की प्रैक्टिस जिसे हम बोल सकते हैं. तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं. पार्थ सारथी शोम कमेटी. Parth Sathi Shom panel, and then we will resume our discussion on fiscal policy, tools of fiscal policy. In this I am going to cover capital gains tax as well. Capital gains tax was in news. What is the meaning of capital gains tax? This will also be covered in the second half of this class. In the later half of this class we are going to cover this. 30 to 40 minutes I will take, 45 minutes to wind up the GAR rules, and then we will come back to this tools of fiscal policy जिसमें GAR, capital expenditure और ये सारी चीज़ें जो कि काफ़ी चीज़ें हम पहले से डील कर चुके हैं, बट उसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे कि टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसमें आता है कैपिटल गेन्स टैक्स, राइट, service tax in India, then central excise duty. These things are, some of them are redundant now in the light of GST coming into vogue. GST के आने के बाद ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी चीज़ें जो है रेडेंडेंट हो चुकी हैं, ठीक है. तो फिर भी इसको कवर करेंगे और इसके अलावा कुछ बचता नहीं है. वैट क्या है ये मैं बता चुका हूँ. एंटरटेनमेंट टैक्स क्या है. GST ऑल्सो वी हैव कवर्ड, राइट. तो अ लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. क्लियर. नाउ लेट अस फर्स्ट स्टार्ट द क्लास विद GAR, general anti-avoidance rules. I had promised some of the students about the notes making and all. I will talk about the notes making thing. आज थोड़ा क्लास को आगे बढ़ाने दो, दोनों चीज़ों को मेरे को बैलेंस करना है, नोट्स मेकिंग को भी और इसको भी. तो पहले जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, दे वर ब्रॉट अबाउट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961. आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ब्लैक मनी क्या है, इनकम टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, इनकम टैक्स इवेजन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस. General anti-avoidance rules. So let's get started. It seeks to prevent, these rules, they seek to prevent companies from routing transactions through other countries to avoid taxes or doing anything which helps them avoid the tax that they should pay. ठीक है. GAR allows the tax officials to deny tax benefits if a commercial deal is found without any real purpose except tax avoidance. What are the ways in which the companies avoid taxes? This is also going to be covered. GAR contains the provisions to stop misuse of treaties that India has with other countries. ध्यान से समझना, general anti-avoidance rules. रूल्स वो रूल्स जो अवॉइड करने, टैक्स अवॉइड करने वाली कंपनीज के एंटी हैं, बिजनेस क्लाइमेट के एंटी नहीं है. हुआ क्या था 2012 में, 2012 में प्रणब मुखर्जी, ही वॉज क्वाइट सैड अबाउट नॉट बीइंग मेड द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर द सेकेंड टाइम. 2004 में मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बना दिया. इवन एज प्रणब मुखर्जी वॉज द सीनियर, ही वॉज द लॉयल ऑफ द कांग्रेस फैमिली, गांधी फैमिली, ठीक है. और फिर 2009 में कांग्रेस इलेक्शन जीती, फिर दोबारा से मनमोहन सिंह को बना दिया. तो उनको लगा कि अब तो मैं जो है बंटाधार करूंगा इस गवर्नमेंट का, ठीक है. तो उन्होंने क्या किया कि ये ठान ली कि अब उल्टे सीधे रूल्स लेके आने जिससे कांग्रेस की, मनमोहन सिंह सरकार का नाम खराब हो. तो जेन्युइन भी था ये कुछ चीज़ जो उन्होंने लाई. हो क्या रहा था कि कंपनीज टैक्स को अवॉइड करने के लिए कलरफुल वेज अडॉप्ट कर रही थी, राइट.
क्या क्या कलरफुल वेज अडॉप्ट किए जा रहे थे वो हम समझेंगे, बट उससे पहले ये टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी है. डिफरेंट वेज यूज्ड बाय द कंपनीज टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी. टैक्स प्लानिंग, tax mitigation, tax avoidance, tax evasion. Tax planning, a lawful arrangement to reduce the tax liability. Short term versus long term capital gains tax, which we are going to see in the second half of today's class. ठीक है. कंपनीज टेक अ लॉफुल एडवांटेज ऑफ टैक्स इंसेंटिव. टैक्स मिटिगेट करने के लिए, अगर मेरी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी का इंश्योरेंस टाइम पे करवा रहा हूं, या फिर मैं अपनी कोई कार ले रहा हूं जानबूझ के, या फिर मैं ये डिस्प्ले पैनल ले रहा हूं 10-15 लाख का, ताकि मुझे टैक्स जो पे करना है वो मैं मिटिगेट कर सकूं. मेरी इनकम है मान लो 10 लाख, ठीक है, चलो मान लो इनकम मान लेते 10 करोड़, ठीक है, क्या जा रहा है जीरो लगाने में. 10 करोड़ अगर मेरी इनकम है और मेरे को 10 करोड़ पे 30% टैक्स पे करना पड़ेगा, तो क्या फायदा है. इससे बढ़िया ये है कि मैं 2 करोड़ खर्चा कर दूं और 8 करोड़ पे मैं 30% टैक्स पे करूं. टैक्स मिटिगेट हो गया ना. टैक्स मिनिमाइजेशन, आई एम ट्राइंग टू मिनिमाइज द टैक्स. कंपनीज टेक अ लॉफुल एडवांटेज ऑफ टैक्स इंसेंटिव, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट. This is what I did. I am reinvesting the profit of 2 crore rupees. This is my profit of 10 crore. I am reinvesting 2 crore rupees out of it by doing something called as business expenditure. ठीक है, business expenditure. Clear to everyone? ये है टैक्स मिटिगेशन. टैक्स प्लानिंग क्या होता है? हमारी कंट्री में एक नॉर्म है कि अगर हम सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, अगर मैं शेयर्स परचेज करता हूं और शेयर्स परचेज करने पे अगर मैं उन शेयर्स को 365 डेज रख लेता हूं, तो 365 डेज के बाद मैं उन्हें बेचूंगा, जो उन पे प्रॉफिट होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो जाएगा. ठीक है, लॉन्ग टर्म हो जाएगा. 1 ईयर मीन्स लॉन्ग टर्म इन दी शेयर मार्केट. 2 years लेस देन 1 ईयर मीन्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. ठीक है, 365 डेज से यदि ज्यादा दिन मैं किसी चीज को रखता हूं, मोर देन 365 डेज, अगर मैंने ये शेयर्स रखे, अब ध्यान से सुनना, मैंने एक रिलायंस का शेयर परचेज किया 1000 रुपीज का, ठीक है, और इस शेयर का प्राइस हो गया मेरे परचेज करने के 8 months के बाद, जस्ट आफ्टर 8 months ऑफ परचेजिंग द शेयर, द प्राइस वाज 1400 रुपीज. ठीक है, if I sell this share within 365 days, more than nahi, before 365, less than 365 days, if I sell it within 365 days, I would have to pay on 1400 rupees, I would have to pay tax at, sorry, not 1400 minus 1000, कितना प्रॉफिट पे, 400 रुपीज के प्रॉफिट पे मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 15%. ठीक है, इसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म. अगर मैं शॉर्ट टर्म में एक प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो यानी कि दिस इज अ विंडफॉल. विंडफॉल मतलब ऊपर से पैसे बरस रहे हैं मेरे लिए, है ना, तो मेरे पे ज्यादा टैक्स लगना चाहिए. अगर मैं लॉन्ग टर्म में, और इससे सरकार क्यों कम टैक्स लगा, इस पे शॉर्ट टर्म पे टैक्स ज्यादा क्यों है? 15% है. लॉन्ग टर्म पे 365 डेज से ज्यादा दिनों के लिए रखे गए शेयर्स पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, यानी कि 10%. क्लियर? यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा है. अगर मैं इन्हीं शेयर्स को 365 डेज के लिए रख लूं, तो सरकार मेरे पे कम टैक्स लगाएगी. इसे बोलते हैं टैक्स प्लानिंग. दैट मीन्स आई एम डिसाइडिंग, आई एम टेकिंग द डिसीजंस ऑफ buying or selling the shares in a planned manner, that if I sell my shares after 1 year, I would have to pay a lesser amount of tax. ठीक है ना, 400 का 15% सरकार ले जाएगी, यानी कि कितना? 60 रुपीज मेरे गवर्नमेंट ले जाएगी. लेकिन अगर मैं यहां पे 1 ईयर के बाद इसे बेचता हूं, तो 40 रुपीज सरकार ले जाएगी. 2018 से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जीरो था. शेयर्स पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जीरो था, जीरो. ठीक है, क्यों जीरो था? क्योंकि गवर्नमेंट ये सोचती थी कि
कि जो लोग 1 साल से ज़्यादा शेयर में पैसा लगा रहे हैं उन पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन? तो ये अच्छी चीज़ थी। और क्या होता है कि जो लोग 1 ईयर से पहले ही शेयर्स बेचते खरीदते रहते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, दे आर दी स्पेक्यूलेटर्स इन दी शेयर मार्केट। वो लोग मुनाफाखोरी कर रहे होते हैं। मुनाफाखोरी मतलब कि पैसे कमाए और भाग गए। लेकिन जो पर्सन 1 ईयर तक शेयर मार्केट में जुटा रहता है, डटा रहता है, the person who is invested for a longer term, his intention must not be, his intention would not be to rich to mint quick dividends. His intention must have been to earn the money in a long span, in a stable way, इन अ प्रूडेंशियल वे वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कर रहा होगा। ये लोग क्या कर रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स में पैसा लगाते हैं उनकी वजह से सेंसेक्स जो है वॉलेटाइल हो जाता है, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। सेंसेक्स 10,000 पॉइंट बढ़ गया, फिर अगले दिन 5,000 पॉइंट्स गिर गया। ये जो डिसीजंस हैं ये रैशनल डिसीजंस नहीं होते, ये सिर्फ लालच होती है कि इस शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा तो आज मैं ये खरीद लेता हूँ, ठीक है। ठीक उसी तरह जैसे यूपीएससी में क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं नहीं मैं रैंक लेके ही जाऊंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चलो यार जिंदगी है, जुआ है, चलो 1 साल यूपीएससी करके देखते हैं, हो सकता है आईएएस बनना किस्मत में लिखा हो, राजयोग चल रहा हो, है ना। तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स सरकार पहले लगाती ही नहीं थी, ठीक है। अरुण जेटली को ये लगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स शेयर मार्केट पे लगाना चाहिए तो उन्होंने लागू कर दिया, जबकि इसके पिटफॉल्स ज़्यादा हैं। क्या है कि अगर आप ओवरऑल 1 लाख रुपए से ज़्यादा शेयर मार्केट में कमा लेते हो, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 1 लाख के ऊपर 10% टैक्स लगेगा। यानी कि अगर मैंने टोटल 1000 रुपीज़ वाले ऐसे शेयर्स परचेज करे, कितने शेयर्स मैंने परचेज करे, मान लो 1000 शेयर्स परचेज करे, ठीक है। 1000 का एक शेयर, बाद में मेरा शेयर हो गया 1400 का, तो मेरे टोटल शेयर्स कितने हो गए, 1000 इंटू 1400, नंबर ऑफ शेयर्स 1000, ठीक है, रुपीज इतने, तो कितने के हो गए मेरे टोटल शेयर्स, 10 लाख रुपीज के परचेज किए थे, 14 लाख रुपीज के हो गए। इस 14 लाख रुपीज में से 1 लाख पे मेरे ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। 1 लाख एग्जेम्प्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1960। बाकी के जो 3 लाख रुपीज हैं उस पे मुझे पहले कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। इफ आई वॉज होल्डिंग दी शेयर्स फॉर मोर देन 1 ईयर, पहले कोई टैक्स नहीं होता था, लेकिन अब सरकार ने 10% टैक्स लगा दिया। लालच बुरी बला है। तो इस गवर्नमेंट का, मोदी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को आज तक 1 साल से ज़्यादा अवधि के लिए, 1 साल से ज़्यादा टेन्योर के लिए हुई इन्वेस्टमेंट्स को कोई टैक्स नहीं लगाता, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा रही थी, पी चिदम्बरम भी नहीं लगा रहे थे, प्रणब मुखर्जी ने भी नहीं लगाया, उससे पहले भी नहीं लगाया। हाँ, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है वो लगा करता था 15% पे, पीनलाइज करने के लिए, ताकि लोग शॉर्ट टर्म में शेयर्स को ना बेचें और शेयर मार्केट में स्टेबिलिटी हो और शेयर मार्केट में वही लोग इन्वेस्ट करें जो लंबी टेन्योर की सोच के आते हैं। गॉट इट? तो माई डिसीजन टू सेल द शेयर्स आफ्टर और बिफोर 1 ईयर इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग। मैं टैक्स को कुछ इस वे में प्लान कर रहा हूं कि अगर मैं ये शेयर्स को मान लो कि मेरे ये शेयर्स 363rd डे को मैं इन शेयर्स को बेचने जा रहा हूं। क्यों मैं बेचूं? मेरे को 15% टैक्स पड़ेगा। क्यों ना मैं इनको 365 डेज के बाद बेचूं? मेरे को 10% टैक्स पड़ेगा। दिस इज what we mean by tax planning. We are planning the tax as to how much tax do I pay. There is nothing wrong in tax planning as well. Clear है ये? Is this clear to everyone? टैक्स को प्लान करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर मेरे को एक एफडी करवानी है 31, अगर मेरे को एक इंश्योरेंस पॉलिसी करानी है एलआईसी की, 31 मार्च से पहले कराऊं या बाद में कराऊं? ठीक है, 31 मार्च से पहले कराऊंगा तो मेरे को इस साल का टैक्स कम पे करना पड़ेगा। 31 मार्च के बाद में कराऊंगा तो मेरी प्लानिंग बेकार है, यानी कि मेरा टैक्स भी पे करना पड़ेगा और फिर नुकसान भी हो गया।
टैक्स मिटिगेशन, कंपनीज टेक अ लॉफुल एडवांटेज ऑफ टैक्स इंसेंटिव। ठीक है, मैं प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट कर दूं, ये एग्जांपल मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, कार परचेज करी मैंने 10 लाख रुपए की, राइट, वो सब जो बताया था ना। अब आते हैं थर्ड पे, टैक्स अवॉइडेंस। हम जैसे जैसे नीचे चले जा रहे हैं वैसे वैसे ग्रेविटी बढ़ती चली जा रही है। टैक्स को अवॉइड करना इलीगल तो नहीं है, बट ये टैक्स को अवॉइड करना जिस लॉ के अकॉर्डिंग वो किया जा रहा है वो भी सही नहीं है। ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस्ड बाय सम लीगल अरेंजमेंट बट इट मे नॉट बी एज पर द इंटेंशन ऑफ द लॉ। ठीक है, इट मे नॉट एज पर द इंटेंशन ऑफ द लॉ। अब यहां पे समझोगे आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखो टैक्स अवॉइडेंस है, सीधे सीधे ये है चौराहा, यहाँ पे कौन खड़े हैं, मामू। मामू किसको बोलते हैं हम, पुलिस वाले को। ठीक है, इंडिया में मामू बोला जाता है। अब मैं यहाँ से बाइक पे आया, मैंने क्या किया, अब यहाँ पे चंडीगढ़ में एक फायदे की चीज़ यहाँ पे क्या है, स्लिप रोड्स हैं। ठीक है, यहाँ मामू खड़े हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, कोई बात नहीं, यहाँ से निकल जाओ। जो लॉ का, जो इस रोड का इंटेंट था, स्लिप रोड का, वो इंटेंशन ये नहीं था कि आप सिग्नल तोड़ने से या मामू से बचने के लिए, पुलिस वाले से बचने के लिए, अगर आप सीधा सिग्नल तोड़ते हो तो आप क्या कर रहे हो, यू आर इवेडिंग द लॉ। ठीक है, टैक्स इवेजन कर रहे हो जो कि इलीगल है। बट अगर आप स्लिप रोड से कट लेते हो तो आप अवॉइड कर रहे हो, टैक्स को अवॉइड कर रहे हो, है ना, या रोड को अवॉइड कर रहे हो। उस रोड पे आप नहीं जा रहे जहां पे पुलिस वाला खड़ा है, यहाँ पे पुलिस वाला दिख रहा है। ठीक है, तो गार रूल्स इसलिए लाए गए कि अगर इंटेंशन ऑफ स्लिप रोड ये नहीं है, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम सीधा जा रहे होते हैं, वो देखते हैं पुलिस वाला खड़ा है, हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो इधर पतली गली में निकल लेते हैं, होता है ना, ऐसा सबके साथ होता है। वैसे ही जो ये कंपनीज हैं तो वो ये देखती हैं कि अच्छा लॉ का इंटेंशन ये है, पुलिस वाला आगे खड़ा है, यहाँ पे तो लॉ रोक लेगी, टैक्स रूल्स लग जाएंगे, इवेजन का चार्ज लग जाएगा, 420 हो जाएगी ये, तो वो लोग पतली गली से निकल लेते हैं। इसको बोला जाता है टैक्स अवॉइडेंस। कैसे निकलते हैं उसे हम समझेंगे अभी। ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस पर्पस ये नहीं था कि आप टैक्स को अवॉइड करो, इस पतली गली का पर्पस ये नहीं था, इस स्लिप रोड का पर्पस ये नहीं था कि आप टैक्स को अवॉइड करके निकलो, इसका पर्पस ये था कि आप इसका सही उपयोग करो। ठीक है, और कंट्री में और इन्वेस्टमेंट लेके आओ इंडिया में, जबकि आप इसका मिसयूज कर रहे हो। टैक्स इवेजन मैंने बता दिया इलीगल। मेरी इनकम 10 करोड़ है, मैं बता रहा हूं 1 करोड़, ताकि मुझे 1 करोड़ पे ही टैक्स पे करना पड़े। ठीक है, कैन इंट्राडे बी कॉल्ड, यस यस प्रतीक, यू आर राइट। ओके, तो अब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर समझते हैं। इन ऑर्डर फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टैक्स अवॉइडेंस वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। पेरेंट कंपनी का नाम है अमेजन। ठीक है, अमेजन की सब्सिडियरी कंपनी क्या है, Amazon.in इंडिया के लिए। ठीक है, Amazon.sa साउथ अफ्रीका। ठीक है, Amazon.au मतलब ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पेरेंट कंपनी का मतलब ये है, दिस पेरेंट कंपनी इज होल्डिंग 51% शेयर। पेरेंट कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी भी बोलते हैं। होल्डिंग कंपनी इज द कंपनी विच होल्ड्स मोर देन 51% ऑफ द शेयर्स इन दिस कंपनी ऑल्सो। सभी कंपनीज के 51% से ज्यादा शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास होते हैं, इसको बोला जाता है सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, होल्डिंग कंपनी जो कहेगी सब्सिडियरी कंपनी वही करेगी। डन, क्योंकि ये कंट्रोलिंग कंपनी है। Amazon.com USA की कंपनी जो कहेगी Amazon इंडिया वही तो करेगी। क्लियर है? टैक्स अवॉइडेंस को समझने के लिए इतनी सी चीज हमें समझना जरूरी है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स। अब क्या होता है, हमारी कंट्री में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स काफी कंट्रीज के साथ में साइन कर रखे हैं। अगर इंडिया ने पनामा कैनाल कहां है, दिस इज पनामा कैनाल। ठीक है, ये रहा हमारा प्यारा भारत
और ये है इन पनामा कैनाल, देख रहे हो ना छोटा सा। अब इन कंट्रीज़ के पास कोई टैक्स बेस नहीं है, रियलिटी में कुछ नहीं है इन कंट्रीज़ के पास में, ठीक है ना ही यहाँ पे इनकम है, छोटी सी आइलैंड कंट्री। वैसे ही स्विट्ज़रलैंड में है, स्विस बैंक का भी यही हाल है, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे यहाँ पे जो सिंगापुर है वो सब भी ऐसे टैक्स हेवन्स हैं। टैक्स हेवन का मतलब ये है कि अमिताभ बच्चन यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, अमिताभ बच्चन यहाँ पे गए और शूटिंग वूटिंग करने गए, और ऐश्वर्या मैडम भी साथ में थी, ठीक है, और अभिषेक बच्चन यहाँ कहीं यूएसए में धूम कर रहे थे। उस टाइम पे इन्होंने यहाँ पे अपनी कंपनी बना ली और 5% टैक्स यहाँ पे इनको पे करना पड़ेगा। इंडिया से ये पैसा यहाँ पे गया, अंबानी ने या अमिताभ बच्चन ने यहाँ पे कंपनी बनाई, टी सीरीज़ की जगह यहाँ पे बना दी एफ सीरीज़। एफ सीरीज़ क्या है? फेक सीरीज़, ठीक है, एक नई कंपनी बना दी और उस कंपनी के ज़रिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया। अब जब यहाँ पे इंडिया में प्रॉफिट होगा उस पे टैक्स कंपनी को ज़्यादा यहाँ नहीं देना पड़ेगा। उस कंपनी की इनकम इंडिया में टैक्स होगी तो 25% लगेगा, लेकिन अगर उस कंपनी की इनकम को पनामा में ट्रांसफ़र कर दिया जाए ये बोल के कि इस कंपनी का ऑनर जो है पनामा में है, कौन है? अमिताभ बच्चन, ठीक है। इनका नाम थोड़ा ऐसे फैंसीफुल हो जाता है, फिर वो सब पनामा जैसे नाम हो जाते हैं, ठीक है। और ऐश्वर्या का नाम ऐश हो जाएगा, ठीक है, ये सिंपल, क्योंकि जो है अभिषेक बच्चन के साथ ऐश नहीं हो सकती, समझ रहे हो ना तुम, अमिताभ के साथ फिर भी हो सकती है। नाउ कमिंग हियर, अब यहाँ पे कंपनी चल रही है, टैक्स अवॉइड हो गया। कैसे अवॉइड हो गया? इंडिया और पनामा के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। दोनों देशों की, दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट्स ने ये अग्री किया है। क्या अग्री किया है? दोनों कंट्रीज ने ये अग्री किया है कि एक कंट्री की कंपनी को एक ही कंट्री में टैक्स किया जाएगा। पनामा की कंपनी यदि इंडिया में बिजनेस कर रही है और पनामा में रजिस्टर्ड है तो उसको पनामा में ही टैक्स लगेगा, इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। इंडिया की कंपनी यदि पनामा में रजिस्टर्ड है, पनामा में काम कर रही है और इंडिया में रजिस्टर्ड है तो उसको इंडिया में ही टैक्स लगेगा, सो एज टू अवॉइड डबल टैक्स। डबल टैक्स का मतलब ये है कि अगर मुझे बैंगलोर की सरकार भी टैक्स लगाए और दिल्ली की सरकार भी टैक्स लगाए तो फिर तो मैं तो टैक्स पे करने जो गई रह गया, फिर तो मैं कमाई तो क्या ही करूंगा। फिर मैं ये सोचूंगा यार इन्होंने सारा पैसा टैक्स में ले जाना है, छोड़ो काम ही नहीं करते, है ना। सो एज नॉट टू डिस्करेज द इनकम, ठीक है, सो एज नॉट टू डिस्करेज द कंपनीज, तो ये क्या किया जाता है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट साइन किए जाते हैं कंपनीज के बीच में, कंट्रीज के बीच में। कंपनी अमेजन यदि यूएसए में रजिस्टर्ड है और इंडिया में उसने अपनी एक सब्सिडियरी कंपनी खोल रखी है तो इंडियन सब्सिडियरी पे टैक्स नहीं लगेगा। किस पे टैक्स लगेगा? अमेरिकन कंपनी पे लगेगा। Amazon.in अपना सारा प्रॉफिट, मान लो इनका प्रॉफिट है 500 करोड़ रुपीस, ये 500 करोड़ रुपीस का जो प्रॉफिट है वो यूएसए में ट्रांसफर कर देंगे और यूएसए में 18% टैक्स रेट है तो 18% टैक्स रेट लगेगा। इंडिया का जो कंपनी पे कॉरपोरेशन टैक्स है वो इंडिया में पे नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया? यस, दिस इज द रीजन, ठीक है। ये कंपनीज क्या डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट जो इंडिया ने साइन किए थे, क्या उनका पर्पस ये था कि ये कंपनीज ऐसे झोल करें, कंपनीज फ्रॉड करें इंडियन गवर्नमेंट के साथ में? Was this the real intent of the double taxation avoidance agreements? No. That is why GAR rules have been brought about, so as to check these kind of malpractices. समझ में आया? ठीक है, दिस इज जस्ट वन एस्पेक्ट कि कैसे ये टैक्स को अवॉइड किया जाता है, ठीक है। बहुत सारी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हम समझेंगे जो आप न्यूज़ में देखते रहते हो, बीच बीच में कभी किसी किताब में आधा पढ़ लिया। तो पेरेंट कंपनी के जरिए सब्सिडियरी कंपनीज बनाई जाती हैं, ठीक है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट का फ़ायदा उठाया जाता है,
ठीक है, बिटवीन द टू नेशंस दैट एम्स टू अवॉइड और एलिमिनेट डबल टैक्सेशन। इनकम एक है तो उसको यूएसए में भी टैक्स लगाओ, इंडिया में भी टैक्स लगाओ, फिर तो अमेजन इंडिया में आएगा ही नहीं। इसीलिए इन दोनों कंट्रीज इंडिया और यूएसए ने एक अग्रीमेंट साइन कर रखा है कि यदि हमारे यहाँ की कंपनी होगी टाटाज या इन्फोसिस, उसको यूएसए में टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, उसको सिर्फ इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आज अमेरिका ये कह रहा है कि हमारी कंपनीज को चाइना जानबूझ के, अमेरिकन कंपनीज को बोल रहा है कि तुम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस, सिर्फ सब्सिडियरी कंपनी नहीं, यूएसए से अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चाइना में शिफ्ट करो ताकि चाइना को कॉर्पोरेट टैक्स मिले। ठीक है, लेकिन कंपनीज ऐसा नहीं कर रही, यूएसए की कंपनीज ऐसा नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि यूएसए में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि टेक्निकल नो हाउ। यूएसए में सिलिकॉन वैली में जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट उन्हें मिलता है वो उन्हें चाइना में नहीं मिलेगा। Such treaties like double taxation avoidance agreement are leading to round tripping. Round tripping क्या होता है? घूम फिर के आना। ठीक है, जैसे मैंने ट्रैफिक वाला जो एग्जाम्पल दिया, तो मैं उस ट्रैफिक वाले एग्जाम्पल में क्या करूँगा, जाना था मुझे सीधा, ठीक है, तो मैं घूम फिर के जाऊँगा। ठीक है, जाना था यहाँ पे, तो मैं कहाँ से जाऊँगा, पतली गली से निकल के पहले यहाँ जाऊँगा और फिर उसके बाद यहाँ से निकल के वो जहाँ पे पुलिस वाला नहीं खड़ा फिर उस रोड पे आऊँगा। यही करूँगा ना मैं, जहाँ पे ट्रैफिक कॉप्स नहीं खड़े। ठीक है, तो मैं यहाँ से साइड बाय पास करके फिर यहाँ पे जाऊँगा, फिर यहाँ पे पुलिस वाले अंकल जो हैं क्रॉस करके वहाँ से निकल जाऊँगा मैं। ठीक है, तो राउंड ट्रिपिंग ऐसा हो रहा है। राउंड ट्रिपिंग में क्या हो रहा है, इंडिया का पैसा है, इंडिया से पहले बाहर जाता है हवाला नेटवर्क के ज़रिए और फिर इंडिया में वापस आ जाता है दोबारा से। राउंड ट्रिपिंग, ये इंडिया से निकलने के रास्ते कई हैं। एक तो सीधा ही 2 नंबर के पैसे, ठीक है, कि सीधा पैसे जो है हार्ड कोर मनी जा रही है, हार्ड कोर पैसा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसा होता नहीं है। हवाला नेटवर्क कैसे काम करते हैं वो भी हम बाद में समझेंगे लास्ट में। ठीक है, क्लियर हुआ राउंड ट्रिपिंग का मतलब क्या है? After this phenomena came to light, Financial Action Task Force. After this round tripping came to light and the money of Indian politicians, the news around the fact that money of Indian politicians and bigwigs is being stashed away in the Swiss bank accounts, is being transferred to the Swiss bank accounts. This news became a limelight. Financial Action Task Force, which is behind Pakistan these days, it has grey listed Pakistan, it is in the process of blacklisting or it might blacklist Pakistan. ये सारी न्यूज़ सुन रहे हो ना? Financial Action Task Force ने ये समझा कि ये जो पैसा ब्लैक मनी बन जाता है, इस पैसे का यूज़ कहाँ हो रहा है? टेररिज्म के लिए हो रहा है, इस्लामिक स्टेट और इन कंट्रीज़ के हाथों में ये पैसा जा रहा है। इसीलिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने स्विस बैंक जैसी कंट्रीज़ को ये कहा कि आपके पास जो अकाउंट्स हैं उनमें किसका पैसा रखा है, जो हिडन अकाउंट्स हैं, जो सीक्रेट अकाउंट्स हैं, जिसे हम स्विस बैंक अकाउंट्स बोलते हैं, आपको ये सारा कुछ डिस्क्लोज करना होगा। एटलीस्ट कंट्री की सरकार को बताना होगा और कंट्री की सरकार आपको ये एश्योरेंस देगी कि वो जुडिशियल प्रोसेस के बिना उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक में रिवील नहीं करेगी। यानी अगर अमिताभ बच्चन का पैसा रखा है पनामा कैनाल के बैंक अकाउंट्स में, तो पनामा सरकार को, भारत सरकार को यह बताना होगा, पनामा गवर्नमेंट हैज टू टेल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट दिस पर्सन नेम्ड ABC, ए हटा दे तो BC बचता है सिर्फ, समझ रहे हो ना? जो देश के साथ गद्दारी करे उसके हम भी दोस्त नहीं है, हम भी दोस्त नहीं है। तो जो कंट्री की गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। अब ये कंट्री की गवर्नमेंट देखेगी कि क्या जुडिशरी में उस केस को फाइल करना है या नहीं करना है। हमारे यहाँ पे 2015 में पनामा कैनाल में ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन का नाम सामने आया था, उस मामले को दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि जुडिशरी जो है खुद ही हार्ले डेविडसन पे सवार है, समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। नहीं, पॉइंट समझो, गुस्सा आता है क्योंकि आई एम अ नेशनलिस्ट, आई एम नॉट द नेशनलिस्ट जो सिर्फ भाइयों बहनों और मित्रों करेगा। जेन्युइनली जब गुस्सा आता है तो आई हैव गॉट एवरी राइट्स। नाउ
हर वो पर्सन बीसी हुआ, मतलब इस हिसाब से ABC का मतलब ये था अमिताभ बच्चन कंपनी, ठीक है, डोंट टेक मी रॉन्ग। नाउ सच ट्रीटीज लेड टू राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी। ये लोग देश के गद्दार ये हैं जिनको गोली मारने को जो बोलते हैं ना अमिताभ, अनुराग ठाकुर और ये सब, तो ऐसे लोग। इसमें क्या है कि हॉर्स राइडर हैं एक बहुत बड़े, जो कि हॉर्स पे, घोड़ों पे पैसा लगाते हैं, उनके भी बहुत पैसे रखे हैं वहाँ पे। आज जो सरकार पाई पाई की मोहताज है, अगर ये केसेस को सुप्रीम कोर्ट में सही मायने में चलाया गया होता, अगर सही मायने में कोई कहता ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो आज ये 15 लाख जो कहे थे ना अकाउंट में आ जाएंगे, ये वही 15 लाख हैं। इसी के बेसिस पे किसी ने कहा था। गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? क्योंकि कांग्रेस के ही थोड़ी ना है सिर्फ वो पैसे, बीजेपी वाले भी तो हैं उसमें, ठीक है। तो ये पैसे अलग अलग कंट्रीज में रखे हैं, अलग अलग लोगों की कंपनीज वहाँ से चल रही हों, चाहे वो तमिलनाडु के, चाहे वो आंध्र प्रदेश के हों, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम वाले हों, चाहे वो पी चिदम्बरम ही क्यों ना हो। सबसे बड़े देशद्रोही तो यही लोग हैं अगर बात पूछो तो आप, ठीक है। जो INX स्कैम हुआ था चैनल वाला, वो उसके पैसे सब वहीं गए हैं, ठीक है, स्विट्जरलैंड और इधर उधर पनामा में कंपनीज खोल रखी हैं। तो इसे राउंड ट्रिपिंग की वजह से एक और टर्म न्यूज में आता है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। बेस ऑफ टैक्स, बेस ऑफ इनकम कहाँ है? मेरी कंट्री में, इंडिया में। लेबरर्स यहाँ पे हैं, हम लोग इतने महंगे महंगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मिलेगी और मेरे देश की तरक्की होगी। लेबर मेरी कंट्री की काम करती है, ठीक है। और फैसिलिटेटरी स्टेप्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रेड कारपेट और ये सब मेरी कंट्री में हो रहा है। प्रॉफिट इज गेटिंग शिफ्टेड टू सम अदर कंट्री, बेस ऑफ इनकम इज गेटिंग eroded. Like the soil gets eroded and falls into an ocean, the base of income is getting eroded towards those countries which haven't contributed to the growth of the world economy. It is India which is taking the progressive steps, but the base is getting shifted to some other countries. So all these FATF countries, member countries, Financial Action Task Force member countries, they came in support of the point that yes, this problem needs to be tackled because black money has got no color. It might be used for terrorism, it might be used for anti-national activities in some of the countries. So they tightened the noose around Switzerland, Singapore, Netherlands, Panama Canal and other small Cayman Islands, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, सभी कंट्रीज के अराउंड शिकंजा कसा गया, इनके स्क्रू टाइट करे गए कि तुम सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करो। कंट्री की सरकार के साथ डिटेल शेयर करनी पड़ी, लेकिन कंट्रीज क्या इन मैटर्स को परस्यू करेंगी, क्या इन पैसे ट्रांसफर करने वालों को बोलेंगे कि तुम पैसा वापस दो या नहीं, ये कंट्रीज पे डिपेंड करता है। Am I clear about all this? तो ये सारी चीजें चल रही हैं यहाँ पे। Just 1 minute. ठीक है, ये हो गया राउंड ट्रिपिंग। अपेरेंट कंपनी वोडाफोन के केस में क्या हुआ, गार रूल्स सबसे पहली बार प्रणब मुखर्जी इसीलिए लेके आए। देखो, हांगकांग की एक कंपनी हचिसन ग्रुप, हच कंपनी ने, हांगकांग की कंपनी ने नीदरलैंड एंड केमन आइलैंड्स में एक सब्सिडियरी कंपनी बनाई, क्योंकि नीदरलैंड में भी कम टैक्स लगता है, ठीक है। और इस हच ने क्या किया, नीदरलैंड एंड केमन आइलैंड में अपनी एक कंपनी बनाई, हचिसन ग्रुप। तो इस हचिसन ग्रुप ने कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया, इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया, SR कंपनी के साथ मिलके, ठीक है। अंडरलाइन कंपनी कहाँ पे है, इंडिया में, राइट। और क्या हुआ, चलो इसको थोड़ा सा मैं बता दूं। हच कंपनी हांगकांग की थी, नीदरलैंड्स में कंपनी थी वोडाफोन, ठीक है। वोडाफोन की कंपनी ने हांगकांग की हच कंपनी से एक एसेट्स की डील करी, ठीक है। कौन सा एसेट, जो हच की हांगकांग कंपनी जो थी, हच कंपनी जो हांगकांग की थी, उसने इंडिया में पैसे लगा रखे थे हच SR ग्रुप के साथ। अब ये जो हच SR ग्रुप है, इसके एसेट्स कहाँ पे हैं, टेलीकॉम टावर कहाँ पे हैं, ऑफिसेज कहाँ पे हैं, इंडिया में। इन्होंने ये डील करी 1.5 लाख करोड़ रुपए में, ठीक है, 1,50,000 करोड़ रुपीस में। हच कंपनी, जो हच का वो छोटा सा डॉगी था ना, पग वग और जो भी था, ठीक है, वो सारा बिजनेस हच ने अपना
वोडाफोन नीदरलैंड्स में लोकेटेड वोडाफोन अदरवाइज कहाँ की है, यूके की, ब्रिटेन की है, ठीक है। यूके की इस कंपनी ने अपनी एक छोटी कंपनी बनाई नीदरलैंड्स में, क्यों, क्योंकि नीदरलैंड्स में 3% टैक्स था। हच ने जो कंपनी बनाई यहाँ पे क्योंकि यहाँ 5% टैक्स था। अब इन दोनों कंपनीज ने क्या किया, आपस में डील कर ली। इंडियन सरकार ने पूछा भैया क्या हमारा टैक्स, तो उन्होंने बोला क्यों, क्योंकि ये डील तो हम दोनों के बीच में हुई है, नीदरलैंड्स और हांगकांग के बीच में हुई है, हच और वोडाफोन के बीच में हुई है, हम आपको टैक्स क्यों दें, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने वोडाफोन को एक नोटिस भेजा कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग वोडाफोन जो आउटगोइंग कंपनी थी उसको 1.5 लाख रुपए देने से पहले आपको भारत सरकार को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के तहत 11,000 करोड़ रुपए देने बनते थे, जो कि आपने टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स करना चाहिए था। आपको 1,39,000 करोड़ हज को देने चाहिए थे, बाकी के पैसे आपको 11,000 करोड़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, इंडिया का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके लिए काट के रखने चाहिए थे, जबकि आपने ऐसा नहीं किया, ठीक है। भारत सरकार ने बोला कि हम कोई छुनछुना बजाने को तो बैठे नहीं है यहाँ पे, कि हमने तुम्हारे ऑफिस जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं वो तो सारे इंडिया में है, ठीक है। ये तो वही वाली बात हो गई कि इंडिया में रह गई भैंस और बोला कि बछड़े को जो है हांगकांग और नीदरलैंड के बीच में बेच दिया। Underlying assets, the telecom towers, there were around 5,000 towers of Hutch, जिसको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना और मोबाइल सेल्युलर टेलीफोनी 2G स्पेक्ट्रम एलोकेट करना, ये सब तो इंडिया ने किया। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंडिया ने क्रिएट करी ताकि आप अपना बिजनेस कर पाओ, ठीक है। वो अलग बात है कि गुजरात में जो है काफी सारे शोरूम्स तबाह भी हुए थे 2002 के रॉयट्स में, लेकिन ओवरऑल तो हेल्दी सिचुएशन हमने प्रोवाइड करी। आप हमें हमारा राइट टू टैक्स कैसे अवॉइड कर सकते हो। हांगकांग ने ये बोला कि आपने हांगकांग के साथ में इंडिया ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट साइन कर रखा है। नीदरलैंड्स ने ये बोला कि इंडिया ने हमारे साथ भी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट साइन कर रखा है। तो हम अगर नीदरलैंड सरकार को, अगर हज कंपनी हांगकांग सरकार को 5% टैक्स पे कर रही है तो इस कंपनी को इंडिया को कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब तो ये होता है, ये लोग डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट को साइट कर रहे थे। फेयर इनफ, क्लियर टिल दिस पॉइंट, समझ में आया। इन्होंने बोला कि हम 11,000 करोड़ क्यों दें, क्योंकि आपका इंडिया का हांगकांग के साथ में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट है, जिसके तहत हमें आपको कोई पैसे देने नहीं बनते। क्लियर। इंडिया ने बोला फाइन, हम गार रूल्स लेके आ रहे हैं। गार रूल्स के तहत जिस पर्पस के लिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट बनाया गया था, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगेगा कि जो इंटेंशन था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, उस इंटेंशन से हट के आप उस प्रावधान का मिसयूज कर रहे हो, तो भले ही वो लीगली वैलिड हो, भले ही वो लीगली उसमें नथिंग स्टॉपिंग हो, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग द हज कंपनी फ्रॉम डूइंग दिस, बट if the income tax department feels that the intention of law was not to give this kind of a tax concession, was not to enable the companies to avoid the tax in this manner, as per the discretion of income tax department can deny the benefit to Hutch or to any other company, ठीक है। इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। सुप्रीम कोर्ट में केस बहुत लंबे टाइम तक चला, 2, 3, 4 साल चलता रहा, ठीक है। 2011-12 में ये मैटर अराइज हुआ था। 2014 में सतयुग जब शुरू हुआ, 2014 में जाके इस केस का सेटलमेंट हुआ। कैसे? हज को बोला गया आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेंगे। हज ने 2,000 करोड़ रुपए सरकार को डिपॉजिट करा दिए और बताया जाता है कि जुडिशरी में भी कुछ करप्शन हुआ था इसको लेके, क्योंकि उसके बाद इमीडिएटली बाद जो सीजेआई थे उस टाइम के, वो सीजेआई की कहां पे अपॉइंटमेंट हुई? गवर्नर ऑफ केरला। समझ में आया?
और बोला जाता है कि टोटल 2000 करोड़ रुपए सरकार को दिए गए, 2000 करोड़ सेटलमेंट मनी दी गई, करप्शन और ये सब। ठीक है, मैं बोलने के लिए मेरी कोई वो नहीं है, अथॉरिटेटिव पोजीशन नहीं है, बट हाँ इसमें से 500 करोड़ कहीं जुडिशरी में गए, 500 करोड़ कहीं और गए, ये सारी चीज़ें गई। हाँ ठीक है, तो ये सारा हुआ। और पी साताशिवम केरला के गवर्नर बन गए। CJI रिटायर्ड होते ही गवर्नर बनना शोभा नहीं देता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो शोभा नहीं देती वो होती हैं। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, अब ये समझ में आया, इंडिया ने ये कहा कि नहीं, जब जब हमें लगेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगेगा कि आपने दुरुपयोग किया है, मिसयूज़ किया है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट का या किसी और ऐसे बेनिफिट का जिसका पर्पस क्या था, जिसका पर्पस इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना था, इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लेके आना था, बट आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो कुछ इस तरह से, तो हम बेनिफिट डिनाई कर सकते हैं। इसके फायदे तो था, इसमें क्या था, कंपनीज जो है डरने लगी, कोई भी ऐसा गलत काम करने से पहले डरने लगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट एडवर्स हो गया, फायदे तो बहुत हुए, लेकिन इसमें क्या हो गया, टैक्स अनसर्टेनिटी बन गई, जिसको नाम दिया गया टैक्स टेररिज्म। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्होंने इंडिया की इमेज को खराब करना शुरू कर दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बोला गया अनईज ऑफ डूइंग बिजनेस। गार हैज मेड इंडिया बेकार। These type of slogans were done raised against India's investment climate. फिर इसका फायदा उठाते हुए सरकार ने हच को, वोडाफोन को लेट गो कर दिया कि चलो छोड़ो, इंडिया का नाम खराब हो रहा है, गार रूल्स आर कंट्रोवर्शियल। ठीक है, लेकिन गार रूल्स के ये फायदे भी थे, क्योंकि जो कंपनीज गलत तरीके से टैक्स का फायदा उठा रही थी, अभी और भी तरीके हैं, एक तो ये हो गया, अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये पार्थसारथी शोम कमेटी के बारे में डिटेल्स। रिकमेंडेड द एप्लीकेशन ऑफ गार फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2017-18, यानी कि 16-17। यानी कि इसमें पता क्या था, इनकम टैक्स में हूं, अगर मैं IRS ऑफिसर हूं, मुझे अगर लगा कि इस कंपनी ने जो है गलत काम किया है या ये बेनिफिट देना बनता नहीं था, दिस इज नॉट एज पर द इंटेंट ऑफ द लॉ, एज पर द इंटेंट ऑफ द लॉ। ठीक है, कोई भी ऐसा बेनिफिट जो लिया जा रहा है तो वो लीगल, बट इंटेंशन ऑफ लॉ ये नहीं है, तो मैं कंपनी को नोटिस भेज सकता हूं। ये तो हो गया ना इंस्पेक्टर राज, इसीलिए इंडिया का क्रिटिसिज्म हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें होने लगी। अब कमेटी ने क्या कहा, व्हाई सो मच ऑफ द कंसर्न रिलेटेड टू गार। एप्रीहेंशन ये थी, गाइडलाइंस कुड बी इंटरप्रेटेड इन मल्टीपल वेज। गार गिव्स वाइड स्पैनिंग पावर्स टू द टैक्स अथॉरिटीज। ठीक है, वेज इन विच कंपनीज ट्राई टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी। पहला पॉइंट हमने समझा, यहां पे तीसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। ठीक है, पहला पॉइंट समझना, ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया अमेजन जो है USA की है। चलो मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूं तुम्हें, ऐसे तुम्हें नहीं समझ में आएगा। हम जब हॉस्टल में थे तो हमारे वहाँ पे एक दोस्त हुआ करता था, होते हैं ना वो रणछोड़ दास, वो दूसरा वाला जो उसमें कौन था, तो वो क्या करता था कि घर से जो है पिन्नी के लड्डू वड्डू लेके आता था, मम्मी उसके बनाते थे अच्छे से, तो वो उसका प्राइस उसे 400 रुपीज़ पड़ता था, लेकिन वो ये बोलता था कि कॉन्ट्री करके मैं लेके आऊँगा, हमारे वहाँ पे एक दुकान है, वहाँ पे ऐसा कुछ बनता है, कोई दाई आई बनाती है, तो उसका प्राइस वो 1200 रुपये कर देता था। मतलब समझ में आया, यानी कि वो अपने घर पैसे ट्रांसफ़र, मतलब वो अपनी जेब में पैसे ट्रांसफ़र कर रहा था, जो कंट्रीब्यूशन में जो चीज़ आएगी उसके पैसे बढ़ा के। ठीक है, अमेजन को यहाँ पे क्या चाहिए था, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स। इंडिया में इससे खरीदारी ज़्यादा हो रही है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है ना, तुम लोग समझ गए होगे एग्जाम्पल जो मेरा कंट्री वाला था, कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना, वो अपने घर पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, कि मतलब घर के नाम पे कोई चीज़ लेके आएंगे और बोलेंगे ये मेरे को इतने की पड़ी थी तो इतने का दे देना। ठीक है, मतलब वो कभी कभी दूसरी चीज़ें भी लेके आता था, जैसे कैंटीन से मिलता है ना सामान सस्ता, समझ रहे हो, कैंटीन की वो लिकर लेके आता था और वो प्राइस पड़ता था उसको कैंटीन का, बॉटल पे लिखा हुआ है वो कैंटीन की है, लेकिन हमें यहाँ बोला जाता था कि नहीं नहीं वो कैंटीन की नहीं है, वो किसी फौजी को दे के कुछ दे दा के मंगाई गई है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट। पिन्नी विन्नी की बात नहीं थी, एक्चुअल बात यही थी, तो मेरे को लगा कि एग्जाम्पल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नेचर और ये सब,
बॉटल पड़ रही है उसको 400 की, लेकिन दिखाई जाती थी मार्केट प्राइस 1200 की। समझ में आया? ताकि अपने पैसे वैसे बन जाए। ठीक है। नाउ अमेजन इंडिया का प्रॉफिट है 500 करोड़ रुपए। अमेजन इंडिया जानबूझ के ये दिखा रहा है कि 50 करोड़ रुपए की ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन बनाई, जो आपके घर लेके आता ना, कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन, 1 2 3 4 5 6 उस पर लिखा हुआ है, मोबाइल के नेटवर्क के साथ उसको कनेक्ट करके, ठीक है, मोबाइल के नेटवर्क के साथ उसे कनेक्ट करके और ये सब करके फटाफट से स्वाइपिंग हो जाती है। जानबूझ के ऐसी 1 लाख मशीन्स का प्राइस दिखा दिया 50 करोड़, 50 करोड़ रुपीस, ताकि इंडिया में जो एक्चुअल प्रॉफिट दिखाया जाएगा वो कितना दिखाया जाएगा, 500 करोड़ रुपीस माइनस 450 करोड़ रुपीस। ठीक है, मतलब माइनस 50 करोड़ रुपीस, प्रॉफिट कितना बचा, 450 करोड़ रुपीस। इस 450 करोड़ पे अब इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। इनका प्राइस जानबूझ के एस्केलेट कर दिया गया है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज ट्रांसफर प्राइसिंग, प्राइसिंग ऑफ ट्रांसफर्ड आइटम्स। अमेजन से पूछा कि तुम्हें ये इंडिया में नहीं मिल रहा था, उन्होंने बोला नहीं, हमें अपने हमें अपने सॉफ्टवेयर से कंपैटिबल प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी चाहिए थी। प्रोप्राइटरी मतलब अमेजन ने बोला ये हम कस्टमाइज्ड बनवाते हैं ताकि किसी पेमेंट में कोई रिस्क ना हो। अमेजन को बोला अच्छा चलो ठीक है। तो ये मतलब क्या है, प्राइस को जानबूझ के इन्फ्लेट किया जाता है ताकि प्रॉफिट कम किया जा सके। हालांकि इसकी एक्चुअल कॉस्ट सिर्फ 2.5 लाख होगी। दिस इज एन अदर वे टू ट्रांसफर मनी बाय जैकिंग अप द प्राइस ऑफ समथिंग। समझ में आया? क्लियर टू एवरीवन? मशीनरी का प्राइस इन्फ्लेट करके अमेजन इंडिया को बेच दी और अमेजन इंडिया ने ज़्यादा पैसे यूएसए को दे दिए, पैसे हो गए कम। ये एक और तरीका है। अब इंडिया ने अमेजन को इंडिया में क्यों बुलाया? यूएसए की कंपनी अमेजन ने 10,000 करोड़ रुपए इंडिया में लगाए। क्यों? ताकि नई टेक्निकल नो हाउ आएगी, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी और कुछ टैक्स भी कमाई होगी सरकार की। लेकिन अगर अमेजन ऐसा करेगी, वॉज दिस एज पर द इंटेंशन ऑफ द लॉ? वॉज दिस द इंटेंशन ऑफ द लॉ? नो। ट्रांसफर कराने को हमने अलाउ किया था, लेकिन अगर आप जानबूझ के इन्फ्लेटेड प्राइस पे कोई चीजें खरीदोगे तो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स आपके अगेंस्ट लगा दिए जाएंगे, अमेजन को अगेंस्ट लगा दिए जाएंगे। अमेजन ने पूछा कि अब हम क्या करें, अगर ऐसी टेक्नोलॉजी महंगी आती है तो गवर्नमेंट ने बोला देन यू नीड नॉट वरी, यू कैन टेक द एडवांस रूलिंग। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, एक नई अथॉरिटी बनाई गई। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का मतलब ये है कि अगर मैं कोई चीज़ परचेज कर रहा हूं तो मेरे ग्रुप में जो है लीडर मैं होता था, ठीक है, मैं एडवांस रूलिंग का लीडर। यानी कि अगर कोई मुझे ये बोलता था कि ये बॉटल 1200 की है, मैं ले आऊं या कुछ ऐसा, तो मैं उसको सिंपल बोलता था कि ठीक है, पहले प्राइस चेक करते हैं मार्केट में कितने का प्राइस है। फिर मैं अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की हैसियत से अपने उस दोस्त को बोल देता था कि ठीक है 1200 नहीं, आप इसे 1000 में ले आओ। यानी कि इनकम टैक्स में डिपार्टमेंट में अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग से पहले, प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले आप एडवांस में रूलिंग ले लोगे। आप कंपनी को ये बोलोगे जो आइटम आप 50 करोड़ की बता रहे हो, हम उसके लिए आपको 30 करोड़ पे अलाउ करते हैं। आप 50 करोड़ की लेके आओगे, लेकिन आपके 500 करोड़ रुपीस प्रॉफिट में से हम सिर्फ 30 करोड़ माइनस करेंगे, आपको 470 करोड़ पे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। सो एज टू क्लियर एनी एम्बिग्विटी, so as to clear the scope of any kind of confusion at a later stage, we are clearing the situation in advance. Done?
दिस इज़ नॉट हवाला का पैसा, ठीक है। तो ये सारी चीज़, ये एक और तरीका है ट्रांसफ़र प्राइसिंग का। ट्रीटी शॉपिंग, कंपनीज क्या करती हैं, इंडिया का स्विस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है स्विस बैंक। जैसे आप विंडो शॉपिंग करते हो ना, अच्छा यहाँ पे 30% लिखा है, फिर अगले शोरूम पे 50% ऑफ, फिर अगले शोरूम पे 70% ऑफ, फिर अगले शोरूम पे 100% ऑफ। यानी कि कंपनीज ये देखती हैं कि अच्छा स्विस बैंक स्विट्ज़रलैंड के साथ में अगर डील करेंगे तो इंडिया और स्विस बैंक की ट्रीटी है, हाँ है। स्विस बैंक में कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 3%। हांगकांग में कितना पे करना पड़ेगा, 2%। चलो अमिताभ बच्चन अपना सारा पैसा हांगकांग ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। मतलब कभी कभी बहुत बुरा लगता है मुझे अमिताभ बच्चन के लिए। बोलते हैं ना, जिसके पंजाबी च कहावत हैगी है, जिदे घर दाने ओदे कमले भी सियाने। मतलब समझ रहे हो, जिसके घर पे दाने होते हैं, मतलब खाने को सब कुछ होता है, उनके कमले भी, उनके जो नादान बच्चे होते हैं उनको भी सयाना कहती है दुनिया। फ़नी है, थोड़ा सा सटायरिकल, मतलब सरकास्टिक टोन में बोल रहा हूँ। मतलब अब आप सोच के देखो, पिता को पता है कि बेटा काम नहीं कर पाएगा, मतलब लायक नहीं है, तो उसकी चिंता में बाप कितना काम कर रहा है, उल्टे पुल्टे भी काम कर रहा है। समझ रहे हो, कौन बनेगा करोड़पति का आइडिया उन्हें तब याद आया जब वो करियर डूब रहा था, और लेकिन ऐसे बनेगा करोड़पति ये हमने नहीं सोचा था। समझ रहे हो ना। तो पॉइंट क्या हुआ, तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट पहले एक्सप्लोर करती हैं कंपनीज कि इंडिया का किन किन कंट्रीज के साथ में अग्रीमेंट है। हांगकांग में सबसे कम टैक्स लग रहा है, तो चलो इंडिया का पैसा 2 नंबर से या 1 नंबर से, ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब 1 नंबर, 2 नंबर मतलब है तो वो भी 2 नंबर, लेकिन यहाँ पे पैसा वाइट रहेगा, ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग जैसे चीज़ों से। तो गलत थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, तुम लोग हंस रहे हो, ठीक है। सलमान खान शादी नहीं कर रहा, आप सोचो, वो पता है 50 साल का हो गया, पीछे 4 भाई हैं, उनका क्या होगा। एक तो अपना ही दोस्त था, वो बहन की बीवी को, मतलब भाई की बीवी को ले गया, कौन, अर्जुन कपूर। समझ, थोड़ा कभी कभी बीच बीच में बातें करता हूँ मैं। तो तुम लोगों को बोझ लेना चाहिए, बोझ हो, अगर परिवार का प्रोडक्टिव बोझ हो तो आदमी काम करता है, चाहे भाई हो या पिता हो। सोच के देखो कितना काम करता है आदमी, समझ रहे हो। वो 50 साल से ऊपर उम्र हो गई, शादी नहीं करनी, क्यों, भाइयों का क्या होगा। अभी तो वो शादी नहीं कर रहा, फिर भी बीवियां छोड़ छोड़ के जा रही हैं, वो शादी कर लेगा तो फिर क्या होगा। नाउ कमिंग हियर on a serious note, companies search for low tax jurisdictions with which India has signed double taxation. Authority for advance ruling is before purchasing something and running the risk of being denied the benefit of tax, it's better to discuss the price in advance with the income tax authority for advance ruling, so that later on there is no ambiguity over the price of the item which the income tax considers the right price and the actual price of purchase being shown by the company, ठीक है। समझ में आया। ठीक है, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ये करती है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। अमेजॉन यूएसए, अमेजॉन इंडिया, ठीक है, अमेजॉन इंडिया दोनों डील करेंगे। इससे बेटर ये है, अमेजन पहले ये आइटम ले आएगा 50,000 करोड़ रुपए की, उसके बाद इस पर डिस्प्यूट होगा। इससे बेटर ये है कि अमेजन ये लेने से पहले ही अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग से अप्रूव करवा ले कि ये इतने का ये डिवाइस है, क्या आप इसको अलाउ, इतना प्राइस इसका मानोगे। अगर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ये बोल दे कि नहीं, हम इसकी कॉस्ट 30 करोड़ मानेंगे, तो अब दिस इज अप टू अमेजन इंडिया whether to buy this from USA or not, ठीक है।
क्लियर? तो ट्रांसफर प्राइसिंग इज डन। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला था अकाउंट में 15 लाख आएंगे, साइप्रस के साथ में, सिंगापुर के साथ में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स फेस इन इंडिया टैक्स एट 15%। अगर कोई कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, क्या होता है कि मैंने यहाँ पे एक कंपनी बनाई और उस कंपनी में मैंने किसी को मतलब छोटी मोटी कंपनी बनाई और उस कंपनी के शेयर्स में मैंने मॉरिशियस से पैसा लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। मॉरिशियस इज अ टैक्स हेवन। और बाद में उस कंपनी के शेयर्स मैंने विद इन 365 डेज बेच दिए, ठीक है। विद इन 365 डेज मैंने उस कंपनी के शेयर्स को बेच दिया और मेरे को उस पर जो प्रॉफिट होगा तो मुझे उस पर ज़्यादा टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी लॉन्ग टर्म वे में इन्वेस्टेड है, भले ही वो मॉरिशियस की हो, तो कोई बात नहीं। सो इफ एनी कंपनी यूजेस द टैक्स हेवन रूट, कोई भी कंपनी यदि टैक्स हेवन से आती है और इंडिया की कंपनी में स्टॉक मार्केट में पैसा लगाती है और उसको एकदम से विंडफॉल गेन्स होने लगते हैं, एकदम से इतने ज़्यादा शेयर बढ़ गए, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। ये एक बार न्यूज़ में आया था, ऐसे इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह में ये जो जोक्स आते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि अनिल अंबानी की कंपनी के शेयर्स डूब रहे हैं, मुकेश ने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं अपने सिंगापुर में बैठे मैनेजर को बोलता हूँ तुम्हारी कंपनी के शेयर्स खरीदेगा, एकदम से 10,000 शेयर्स वो परचेज करेगा, तुम्हारी कंपनी के शेयर का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और जो कॉमन इन्वेस्टर्स हैं वो फिर उस शेयर को परचेज करने लगेंगे। तब तुम क्या करना, तुम अपनी कंपनी के 5,000 शेयर्स महंगे दाम पे बेच देना। समझ में आया? तो एकदम से शेयर का प्राइस जैकअप करने के लिए अगर ऐसा कुछ होता है तो जिस कंपनी को ये फायदा होगा उस कंपनी को 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी टैक्स हेवन रूट से आती है, भले ही इंडिया का उस कंपनी के साथ कोई कंपनी सिंगापुर से आ रही है और सिंगापुर को टैक्स हेवन इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, तो सिंगापुर से उस कंपनी का, कंट्री का, इंडिया का भले ही क्या हो, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट हो, बावजूद डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर 7.5% टैक्स इंडिया में लगाएगी ही लगाएगी, उसको जाने नहीं देगी बिना टैक्स पे किए। कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा ही लगेगा। यस आलोक, हर्ष, इट्स लाइक नेगोशिएटिंग बिफोर बाइंग देम। क्या? तो ये सारे सेफगार्ड मैकेनिज्म्स हमने इंस्टिल किए हैं। हम ये क्यों स्टडी कर रहे हैं? बिकॉज फिस्कल पॉलिसी के अंडर आता है ये। गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज यदि डिटेरियोरेट हो रहे हैं तो इन चीज़ों की वजह से हो रहे हैं। एंजल टैक्स, दिस अवॉइडेंस ऑफ टैक्सेस, ये सारी वजह से फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टैक्स रेवेन्यू का कलेक्शन डाउन चले जा रहा है, राइट। अंडर दी लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट एक क्लॉज डाला गया है हमने अपने सारे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, जिस भी कंट्री के साथ में इंडिया ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट किया है, उन सारी ट्रीटीज को रिवाइज करा जा रहा है। उसमें लिखा जा रहा है लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट, एक क्लॉज सेक्शन 311 कुछ ऐसा है, लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट। लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट विल बी इम्पोज्ड ऑन द कंपनीज coming from the tax havens. That means if the company's limitation of benefit clause ये कहता है, ट्रीटी में ये डाल दिया गया है, इंसर्ट कर दिया गया, रिवाइज किया गया है ट्रीटीज को, और उसमें ये लिखा है कि अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, यानी कि मैं अगर अंबानी और इनका नाम लेते हैं ना, मैं अपना नाम क्यों लूँ, ठीक है, अंबानी अगर मुंबई से बैठे इस कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, और दिखाया जा रहा है कि मॉरिशियस में उनका कोई मैनेजर बैठा है, तो अल्टीमेटली डिसीजंस यहाँ से लिए जा रहे हैं, मुंबई से लिए जा रहे हैं। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ हुआ? इंडिया में हुआ। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये देखेगा इंडिया में हो रही इस कंपनी की इनकम का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कोई इंडियन रेजिडेंट चला रहा है, ठीक है, भले ही वो इंडिया में बैठा है, कंपनी भले ही मॉरिशियस में रजिस्टर्ड है, तब भी उसको बेनिफिट्स डिनाई कर दिए जाएंगे। लॉ में ये बोला जाता है कंपनी हैज गॉट इट्स ओन लीगल आइडेंटिटी, बट if the company has been created outside India with its own identity just to take benefits of tax avoidance, even as the people managing that company are located in India, they are based in India,
देन प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट रूल को लगाते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गार रूल्स में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट नाम का एक क्लॉज है, उस रूल को इन्वोक करते हुए, उस रूल को इम्पोज करते हुए अंबानी की इस कंपनी को मॉरिशस से होने का फायदा लेने से मना कर सकते हैं। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट नलिफाई हो जाएगा, यहाँ पे फ्रीज सस्पेंड हो जाएगा फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि कंपनी इज इफेक्टिवली बीइंग मैनेज्ड बाय अ पर्सन हु इज एन इंडियन एंड लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, इन्वेस्टर्स को और क्या करना पड़ेगा, अगर उनको लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट क्लॉज नहीं लगवाना, यानी कि किसका लिमिटेशन, कौन सा बेनिफिट, ट्रीटी का बेनिफिट, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी का अगर बेनिफिट लिमिटेड नहीं करवाना, आप चाहते हो कि आपकी कंपनी को मॉरिशस से होने का बेनिफिट पूरा मिले, लिमिटेड ना मिले, तो आपको वहां का आधार कार्ड या आपको ये दिखाना होगा कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है। ठीक है, उस कंपनी को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, सिर्फ शेयर्स में पैसे लगाए और मुनाफा कमा के निकाल लिया और मॉरिशस ले गए, नहीं, आपको इंडिया में एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी। अगर आपकी कंपनी मॉरिशस, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, केमैन आइलैंड या कोई और टैक्स हेवन में लोकेटेड है। क्लियर? और limitation of benefit clause in the tax treaties generally requires the investors to meet certain spending and employment criteria to avail the benefits of the treaty, to ensure that only genuine resident companies benefit from the pact. Place of effective management requires the foreign companies to pay taxes in India if the effective control of the business lies within the country. The main objective of introducing POEM was to ensure that the companies incorporated outside India but controlled and managed from India do not avoid taxation in India merely by virtue of the fact that they are located outside India. Company is the legal identity. Any company has got separate legal identity, but that separate legal identity, if it is just a curtain to hide the real person behind the company, then the corporate veil होता है curtain, ठीक है, corporate curtain could be lifted to expose the actual identity of the people who are managing the company. ठीक है, so it also brings in the concept of residency of the corporates in line with the internationally accepted principles. Read it, and if you've got any doubt, do let me know. Done. What the government has done to LA, अब इंडस्ट्री के कुछ फियर्स थे, तो उस इंडस्ट्री के फियर्स को कैसे असुआज किया, क्या स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने ये कहा, देखो गार रूल्स अपने आप में गलत नहीं थे, गार रूल्स में गलत क्या था कि उनको बैक डेट से इम्पोज किया गया। रूल्स लाए गए 2012 में, ये कहा गया कि 2012 से पहले की भी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर भी ये टैक्स लगेगा, जबकि वो गार रूल्स आए भी नहीं थे तब से, यानी कि कैनन ऑफ सर्टेनिटी ऑफ टैक्स पढ़ा था आपने, आई हैव गिवन यू दिस एज द होमवर्क, कैनन ऑफ टैक्स सर्टेनिटी। ठीक है, टैक्स सर्टेनिटी ना होने के बावजूद भी ये किया जा सकता है। क्लियर? डन? So this is all. पोएम के एग्जाम्पल में कोई सैंक्शन नहीं किया गया अभी तक, यही तो दिक्कत है। अब एक और चीज़ लाई गई, गवर्नमेंट ने इनके कंसर्न तो एड्रेस कर दिए और ये बोला कि ग्रैंडफादरिंग क्लॉज ये होता है कि जो 1 अप्रैल 2017 से पहले जो इन्वेस्टमेंट आई है
वो ग्रैंडफादर मान लिया जाएगा, उनके ऊपर ये ग्रैंडफादरिंग क्लॉज लगा दिया कि उसको गार रूल्स के परव्यू के अंडर नहीं लाया जाएगा। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग मैंने बता दिया। फर्स्ट स्टेज अप्रूवल, अब इंडस्ट्री ने जब ये कहा, कंपनीज ने ये कहा, फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज ने कि ये तो इंस्पेक्टर राज हो जाएगा, तो गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसा नहीं है कि कोई भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपको नोटिस भेज सकता है, नहीं। फर्स्ट स्टेज अप्रूवल, किसी के ऊपर गार लगाने से पहले प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स को अप्रूवल देनी होगी। सेकेंड स्टेज अप्रूवल बाय एन अप्रूविंग पैनल हेडेड बाय हाई कोर्ट जज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज अप्रूवल प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेनी होगी, सीनियर लेवल फंक्शनरी। सीनियर लेवल फंक्शनरी से फायदा ये होता है कि सीनियर लेवल फंक्शनरी को अपनी प्रमोशन के भी लालच रहेगा, वो 2-4 लाख या 2-4 करोड़ के पीछे ये सब छोटे काम नहीं करेंगे रिश्वतखोरी के पीछे कि किसी को भी हैरेस करने के लिए टैक्स नोटिस भेज दिया जाए। क्लियर? सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। क्लियर? सो दिस पार्ट इज देयर। नाउ कमिंग हियर, ये मैंने बता दिया कि कैसे ये काम करता है। ब्लैक मनी, रूटिंग होती है ब्लैक मनी की, और फिर उसके बाद ब्लैक मनी सबसे पहले जनरेट हुई। पहली दिक्कत तो ये है कि जब कंट्री में चौकीदार है तो जनरेट क्यों हुई, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लैक मनी रूटिंग होती है हवाला के ज़रिए, फिर उसके बाद ब्लैक मनी फाइनली रिहैबिलिटेट हो जाती है। रिहैबिलिटेशन मतलब जब वो मनी फाइनली पनामा, केमैन या ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में जाके सेटल हो गई, ठीक है। तो ये सारा कुछ आता है गार रूल्स के अंडर। क्लियर है सबको? ये थे हमारे गार रूल्स, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। किसी को कोई डाउट है इसमें? Done? This PDF has already been shared. तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और ये सब थोड़ा सा आप देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमने पहले से कवर करी हैं, एक बार आप खुद से देखोगे इन्हें गाइस। आज का लीड टॉपिक वैसे यही था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी मैंने बता दिया। शेयर मार्केट में जब कोई ट्रांजैक्शन करता है तो 2-3 तरह के टैक्सेस लगते हैं। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है, जितनी सेल होती है उस पर 0.5% टैक्स लग जाता है सिक्योरिटीज़ को ट्रांजैक्शन करने का, भले ही मुझे कुछ बचा है या नहीं। जैसे ही मैं कुछ परचेज करूंगा, कोई शेयर्स परचेज करूंगा, उन पे टैक्स लग जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं उन्हें सेल करूंगा, उन्हें दोबारा टैक्स लग जाएगा मुझे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आप इसे खुद कवर कर सकते हो। वैसे तो पेनाल्टीज कितने लोगों ने इसे पढ़ा है? ईमानदारी से बताना। प्राइम मिनिस्टर मोदी वाली ईमानदारी नहीं चाहिए मुझे, ईमानदारी चाहिए बस। फटाफट से बताओ। इट वॉज चैनलाइज फ्रॉम द बैकडेट टू गेट होल्ड ऑफ वोडाफोन। कुछ कंपनीज को हैरेस करने के लिए किया गया होगा, ठीक है, बट वो कंपनीज मानी नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। तो ये सारी चीज़ें थी। क्यों किया गया वो भी एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है, नहीं करना चाहिए था, उससे कंट्री की छवि खराब हुई। लेकिन प्रणब मुखर्जी का ये मानना था कि अराउंड 12 लाख करोड़ रुपीज़ वर्थ ऑफ प्रॉफिट्स वर अवॉइडेड फ्रॉम टैक्स। Profit was due towards the government on 12 lakh rupees worth of tax was due towards the government on profits worth 12 lakh rupees, 12 लाख करोड़ रुपीज़। वो गवर्नमेंट को वो डिनाई किया गया, तो इसलिए प्रणब मुखर्जी ने उसे बैक डेट से अप्लाई कर दिया, जिससे कि सरकार की छवि बहुत ख़राब हुई। क्या इसको पढ़ोगे गाइस? ठीक है, एक बार पूरा पढ़ो इसे। आज कितनी पीपीटीज बची हैं इसमें देखो एक बार। स्लाइड नंबर 109 पे हैं और 227 स्लाइड्स हैं। मेरे को नहीं लगता मैंने इसमें से कुछ छोड़ा है, सारा कुछ एक बार पढ़ो, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा फिस्कल पॉलिसी जो है क्रिएट हो जाता है। कौन कौन से टॉपिक्स मैंने नहीं कवर करे हैं
जो लोग आज इसे पढ़ लेंगे रात में 11-12 बजे तक, मुझे हाईलाइट करना कि कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही डिस्क्रिप्टिव हैं, कुछ भी कॉन्सेप्चुअल इसमें नहीं है, सारा का सारा जो है कैनन ऑफ इक्विटी ये मैं कवर कर चुका हूँ। आई हैड थॉट कि इसमें आई विल डू अ क्विक रन थ्रू ऑफ दी स्लाइड्स, कुछ भी ऐसा नहीं बचा है, ठीक है। दीज आर जस्ट एग्जाम्पलरी, ये आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्प्लीफाई करने के लिए ये चीज़ें डाली गई हैं। स्टेटमेंट 1 क्या होता है, जस्ट गो थ्रू इट वंस, डिटेल में नहीं जाना, बट आपको बजट का आउटले पता लग जाएगा कि कैसा होता है, ठीक है। और कुछ भी इसमें है नहीं, दिस इज जस्ट फॉर टेलिंग यू कि क्या होता है बैलेंसिंग बजट, क्या होता है बजट, कैसा है अनबैलेंस्ड बजट, क्या होता है आउटकम बजट, मैं बता चुका हूँ। परफॉर्मेंस बजटिंग ये एक बार डील कर लेंगे जस्ट इन 5 मिनट्स। कल से हमारा शुरू हो जाएगा कैपिटल मार्केट, ठीक है। रिलेटेड रिफॉर्म एक बार कल से नहीं तो परसों से शुरू हो जाएगा। जेंडर बजटिंग क्या होता है, डायरेक्टरेट जनरल नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी क्यों बनाई गई, ई वे बिल हमने कवर कर लिया। तो यानी कि ये 15 स्लाइड्स हैं जो हमारी नहीं कवर हुई, उसके अलावा सब कवर्ड है, ठीक है। नीट फॉर पीडीएम में ये 20 स्लाइड्स हैं सिर्फ, इसको भी आप खुद पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि इतनी सारी एक्सप्लेनेशन, टाइप्स ऑफ बजट और ऑनवर्ड्स। स्लाइड नंबर 190 से लेकर बाकी रेस्ट एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड। 190 से लेकर मैं बता देता हूँ, रेलवे बजट, डूइंग अवे, जेंडर बजटिंग, डायरेक्टरेट जनरल, नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग, जी यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक कवर नहीं हुआ। स्लाइड नंबर 190 से 206 मैं कवर करवाऊँगा, बाकी की चीज़ें आप खुद से कवर करोगे, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, ये सारा कुछ, ईश्वर पैनल क्या था पढ़ लोगे खुद, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें आगे भी आएंगी दोबारा से, इनको बेटर वे में समझने के लिए। जीईएम ये काम का नहीं है, ये इसमें नहीं है, ठीक है। मतलब काम का है बट इसमें नहीं आता। थिंग्स यू शुड नो, जीडीपी क्या है, कैपिटल, दोबारा से रिवीजन के वे से ये बनाई गई है थोड़ा सा। मैट क्या है मैं बता चुका हूँ, राइट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, क्लियर। सो दिस वाज ऑल। परसों से रखते हैं, कल आप सारा दिन जो है इसको रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी कल डाउट्स एंटरटेन करूँगा। कल आप आज की क्लासेस के अलावा कल की जो क्लास रहेगी करंट अफेयर्स की, अपार्ट फ्रॉम दैट फोकस ऑन द इंडियन इकोनॉमी पार्ट, फिस्कल पॉलिसी। टुमारो विल बी योर डाउट सेशन, ओके। Yes, I will cover them, and tomorrow will be the doubt session on Indian economy. Clear? So, thank you guys. Bye-bye. पूरा इसको रिवाइज करोगे फटाफट, अगर अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। Yesterday's class क्या कह रहे हो आलोक? Yes, FRBM has been covered. Parul? FRBM हैज़ बीन कवर्ड। नितिन, देयर वाज अ डाउट कि इंडियन इकोनॉमी में डर लग रहा है, तो आप मेरे को काउंसलर को रीच आउट कर सकते हो, 8829322364 पे आप मैसेज कर सकते हो, ऑलराइट। नील जीएसटी मीन्स द रिटर्न इज नील, ओके, जीएसटी रिटर्न वुड बी नील, ऑलराइट। अब गार को इस पे ये फटाफट कर लेना। प्रतीक एजेंडा नोट्स मेकिंग कर देंगे, उसमें ये ऑफ द ट्रैक जाने में ऐसे लगता है टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो कर दूंगा मैं उसे भी कवर, क्लियर। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइस।